Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Mute yourself. Morning, sir. Good Good morning, morning. Good morning, sir. Good 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 morning. So, students, today we will solve questions based on quadratic formula. Exercise 4.3. Question number second. In second question, it is given that find the roots of the quadratic equations given in question number 1 above by applying the quadratic formula. So question number first का जो first है 2x square minus 7x plus 3 is equals to 0. Now we have to find its roots by using the quadratic formula. So when we compare this with quadratic standard form of quadratic equation, so we get the value of a 2, b minus 7 and c 3. So here on comparing with ax square plus bx plus c equals to 0, we get a is equals to 2, b equals to minus 7 and c is equals to 3. देखो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो हमें a का वैल्यू 2, b का माइनस 7, c का 3 मिल रहा है. अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है. तो इसमें वैल्यू बैठाओ. x का वैल्यू माइनस 7 है, यहाँ माइनस है माइनस 7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3. 4ac है तो a is 2, c is 3 divided by 2 into 2. So when we solve it, we get this will be minus minus plus 7 plus minus c here 49 और ये 4 2 जा 8 3 24 रूट ओवर 49 minus 24 divided by 4. So here we get x is equals to 7 plus minus root over 25 divided by 4. So x is equals to 7 plus minus 5 upon 4. Now here it is plus and minus. तो हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस लेंगे एक बार हम माइनस लेंगे. तो दिस विल बिकम x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 और एक बार हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 अपॉन 4. दिस विल बी x इक्वल टू 12 अपॉन 4. सो x इज इक्वल्स टू 3. हियर x इज इक्वल्स टू 2 by 4. सो x इज इक्वल्स टू 1 by 2. The two values we are getting here means two roots, x is equals to 3 and x is equals to 1 upon 2. So this is quadratic formula.
Okay, students, this is our quadratic formula, and by using this, we can find the roots of this quadratic equation. तो इसके पहले हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़ा. म्यूट कर लेंगे आप लोग. बेटा म्यूट योरसेल्फ. सभी लोग म्यूट करो अपने को. क्वाड्रेटिक फार्मूला के पहले रूट्स निकालने का दो तरीका मैंने बताया था. एक था फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो फैक्टराइजेशन मेथड में सारे नंबर, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर नहीं किया जा सकता है. इन दैट केस हम लोगों को वैसे ही छोड़ना पड़ता. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं होता तो उसके रूट्स नहीं निकलेंगे. लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला, when we use this, so we can find the roots of any number, any quadratic equation. किसी भी quadratic equation का रूट हम लोग find कर सकते हैं. So this method is to find the roots of a quadratic equation of any type. किसी भी तरह का होगा तो इससे निकल जाएगा. और ये आसान भी है, सीधा सीधा इसमें बैठाओ, फैक्टराइजेशन का लफड़ा ही नहीं है. So see this. माइनस बी वाला फार्मूला बना तो बी का What happened, निखिल सिंह? माइनस माइनस का हो जाएगी. निखिल सिंह, कोई प्रॉब्लम है? निखिल सिंह, हैव यू एनी प्रॉब्लम? ओके, तो आपस में बात कर रहे हो पीछे, तो म्यूट कर लो ना. क्या है? नोट इट डाउन. ये अगर हो गया तो फिर बताओ आगे किया जाए. डन सर. ओके, सर हो गया है. so remaining questions do yourself of this first question, means second question. फर्स्ट क्वेश्चन में जो फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने सॉल्व किया था ना, तो सेकंड में उसी को क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला खुद से अप्लाई करो और इसको सॉल्व करना. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. Question number third. First question. Find the roots of the following quadratic equation. X minus 1 by x is equals to 3, where x not equal to 0. See students, in this question we have to find its roots. Method is not given. Method is not given. So we are free to find its roots by any method. Three methods we have already studied: by factorization method, by completing the square method, or by quadratic formula. Mute yourself. Mute कर लो. रुद्रांश म्यूट करो.
Yes, sir. म्यूट कर लो. So here first simplify it and convert it in the standard form of a quadratic formula, quadratic equation. ये quadratic equation नहीं दिख रहा है, तो पहले यहाँ LCM लेंगे हम लोग. When we take LCM x, so we get x square minus 1 is equals to 3 upon 1. Cross multiply here, you get x square minus 1 is equals to 3x. From here, we get x square minus 3x minus 1 is equals to 0. ये देखो, ये x not equal to 0 given है, इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल. ये केवल इसलिए दिया हुआ है कि ये हमारा क्वेश्चन मैथमेटिकली करेक्ट हो. बिकॉज यहाँ अगर 0 बैठाएंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा. So we are getting here the quadratic equation x square minus 3x minus 1 equals to 0. Now we have to find its roots by any method. So if we do the factorization, it is not possible. यहाँ देखो, अगर factorization करते हो तो factorization करना यहाँ possible नहीं है. तो सबसे आसान काम क्या है कि use quadratic formula. So we can write here by quadratic formula. We know x is equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a. Put here the value of a, b and c. So x will be equals to, see here, it is minus b and b is already minus 3. तो ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट ओवर -3 स्क्वायर प्लस b square minus 4ac. A is 1, c is -1. So it will be 1 into -1 divided by 2a. 2 into a is 1. So this will be our value. Now this x is equals to, it will be 3 plus minus root over 3 3 is 9, and this will be minus and minus plus 4 divided by 2. So here x is equals to 3 plus minus root over 13 by 2. This will be our answer. अब इसे कुछ नहीं करना है, तुम चाहो तो इसको 2 बार लिख दो या इसे छोड़ दो. अगर 2 बार लिखोगे, एक बार प्लस वैल्यू ले लो 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2, और एक बार माइनस वैल्यू लोगे तो क्या होगा, 3 माइनस रूट ओवर 13 बाई x minus 1 upon x is equal to 2. सर एक बार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बता दीजिए. ओके, पहले इसको लिखो. ये समझ में आया ना? यस सर, यस समझ आ गया. ओके. हो गया, ये नोट कर लिए? हैव यू नोटेड इट? यस सर. ओके. यस यस. सी हियर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में अभी ही जो हमें इसमें इक्वेशन मिला था, एक्स स्क्वायर -3x - 1 इक्वल्स टू 0.
suppose we have to find its roots by completing the square method. तो how shall we do it? हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ कांस्टेंट को राइट साइड में ट्रांसफर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 1. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. तो अब इसको दोनों तरफ किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. यहाँ अगर 2 या 3 या 4 कोई नंबर होता तो उससे दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करते. यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट कितना है 3. इसमें डिनोमिनेटर में 2 लगाएंगे और इसी का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिया जाएगा. क्या किए? तो x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 का आधा कर दो, उसका होल स्क्वायर इसमें दोनों तरफ जोड़ दो. तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 होल स्क्वायर. तो हियर वी गेट, सी हियर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म का है ये. तो ये होगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर. म्यूट योर सेल्फ, म्यूट कर लो. सत्यम म्यूट योर सेल्फ. सत्यम म्यूट करो. नाउ सी हियर, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर एंड इन दिस साइड इट विल बी 9/4. तो 4 1 या 4 प्लस 9 13/4. अब क्या होगा, इसका स्क्वायर जब हटाओगे ना तो ये राइट साइड में जाके अंडर रूट हो जाएगा और ये प्लस माइनस आता है. कोई भी नंबर जो रूट से बाहर आएगा दैट विल बी ऑलवेज प्लस माइनस. So here we get x is equals to 3/2 plus minus under root 13/4. This 3/2 is transferred in right side. जब हम इसे राइट साइड में ट्रांसफर कर दिए तो ये इधर नेगेटिव उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव. सो वी गेट x is equals to 3/2 plus minus root 13 will not come out from root but 4 will come out too. So we get x is equals to 3 plus minus root over 13. अभी अभी इसका हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया था तो यही आंसर आया था और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दिए तो वही आंसर आ गया. ओके अब देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? Sir. ओके सर 3/2 कैसे है? x का कोएफिशिएंट 3 है ना, उसका हाफ कर देना है. x का कोएफिशिएंट कितना है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? x का कोएफिशिएंट बताओ. 3 है. तो उसका आधा करेंगे. ऑलवेज जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका आधा करेंगे और दोनों तरफ उसका स्क्वायर जोड़ देंगे. यस सर, समझ में आ गया है. Now I am going to explain one question from R.S. Agarwal, not of this book. Question number 70, R.S. Agarwal. It is a upon ax minus 1, a upon ax minus 1 plus b upon bx minus 1 is equals to a plus b, where x not equal to a by 1 by a, x not equal to 1 by a and 1 by b. See here,
वी हैव टू फाइंड इट्स रूट्स। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। तो हाउ शैल वी फाइंड इट्स रूट्स? हियर वी विल यूज वन ट्रिक। यहाँ हम एक ट्रिक इस्तेमाल करना है। वी हैव टू यूज वन, ओ सॉरी, हाँ ठीक, वी हैव टू यूज वन ट्रिक। यहाँ एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो ये a अपॉन ax माइनस 1 में से b को माइनस कर दो, प्लस ये ऐसे कर लो, b बाई bx माइनस 1 में से a माइनस कर लो, तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। हमने a को लेफ्ट में लाया, b को भी लेफ्ट में लाया। नाउ टेक एलसीएम ऑफ बोथ। इन दोनों का अलग अलग सेपरेटली अगर एलसीएम लेते हो तो व्हाट डू यू गेट, ये कैंसिल हो गया, a विल बी हियर, माइनस 1 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। म्यूट कर लो, सभी लोग अपने को म्यूट रखो। ये बच्चा इसमें b का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, a b x, और ये माइनस है इसलिए ये प्लस b हो जाएगा। प्लस यहां हमने ले लिया एलसीएम bx माइनस 1, तो ये b रहेगा यहाँ, माइनस यहां से फिर ये a b x प्लस a विल बी इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर दोनों सेम है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। सो दिस a प्लस b माइनस ए बी एक्स विल बी टेकन आउट कॉमन। तो हमारा क्या बचेगा, 1 अपॉन ax माइनस 1 प्लस 1 अपॉन bx माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। क्या हुआ, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर कॉमन हो गया, जो बच गया उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। फ्रॉम हियर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, इट मींस ईदर वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक ना एक 0 होगा। तो व्हाट विल वी डू हियर, वी विल राइट हियर इधर a प्लस b माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो यहां से देखो ये ए बी एक्स अगर राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ए बी एक्स इक्वल्स टू a plus b। So x is equals to a plus b by ab. Here this implies that x is equals to a plus b upon ab. One answer is this, one root is this, एक रूट निकल गया। अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे सेकंड के लिए, व्हेन वी सॉल्व दिस, 1 अपॉन ax माइनस 1 प्लस 1 अपॉन bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टेक एलसीएम हियर, ax माइनस 1 इंटू bx माइनस 1, तो हियर वी गेट bx माइनस 1 प्लस ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये तो 0 में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट bx प्लस ax माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर व्हेन वी टेक x कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स, तो a प्लस b इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस b। तो इन दिस वे द टू रूट्स आर a प्लस b बाई ab एंड 2 अपॉन a प्लस b। ओके देख लो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? साउंड इज नॉट क्लियर, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी क्लियर। सर आप कॉमन कैसे लिए हैं? हाँ ये ऊपर ना, यस सर, उसके नीचे। हाँ दोनों सेम है, यस सर। तो यहाँ कॉमन ले लिए।
ये न्यूमरेटर सेम है तो उसको कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ 1/(x-1) बच गया, यहाँ 1/(bx-1) बच गया। सर यस सर हम उसको बिना उधर लाए नहीं कर सकते हैं ना, सर। जस्ट -b और -c उधर ले गए हैं तो फिर उसको बिना वैसे करके नहीं कर सकते हम। करके देखना, हो जाए तो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे। ठीक है हेलो सर। यस सर जो दूसरा रूट निकला है वो 1/1 में ax-1 प्लस 1/में bx-1। सर तो उस एलसीएम लिए हैं तो बोलो एलसीएम लिए हैं, कैसे है? एलसीएम कैसे आया, क्या एलसीएम पूछ रहे हो ना? अंगद गुप्ता, एलसीएम जब दोनों डिफरेंट है ना, दो नंबर अलग अलग होते हैं तो उसका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम बताओ। 2 into 3 सर 6 होगा। उसी तरह से ये दोनों डिफरेंट है, ax-1 और bx-1, तो इनका एलसीएम भी क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। सर ये ट्रिक कैसे पता लगेगा कि इसमें अप्लाई हो सकता है? क्या ट्रिक है? ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूनिक हैं, जिनमें हमें वो ट्रिक, जैसे अब मैं बता दिया तो तुम इसको ख्याल रखो। इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया था जिसमें तुमको ट्रिक इस्तेमाल करना है। ट्रिक, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसा दिया हुआ है वैसा अगर करेंगे हम लोग तो नहीं हो पाएगा, ये उलझ जाएगा कहीं ना कहीं जाके, इतना ज्यादा लेंदी होगा कैलकुलेशन। अगर होगा भी तो बहुत दिक्कत होगी, वो टाइम, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और ट्रिक अगर याद है कि हमको ये करना है तो फिर इजीली यू कैन सॉल्व इट। केवल ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं उसी में अप्लाई होता है? हाँ, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आर देयर। जैसे इसके पहले भी 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया था जिसमें तुमको ट्रिक इस्तेमाल करना है, विदाउट ट्रिक वो नहीं होगा। यस सर, थैंक यू। ओके, हैव यू नोटेड इट? हो गया, नोट कर लिए हो? नो सर। नोट इट डाउन, रुको जरा, सबर करो। यस सर। ओके, लेट देम नोट। यस सर। चिल्लाओ नहीं भाई, हो गया, मैं समझ गया। अच्छा वो सत्यम चौबे था। तुम मुंह बंद करो अपना, कौन था मुझे बताओ बस। Okay, let's come to exercise 4.3. Question number 2nd of 3rd. Yes sir. I'm me. 1/x plus 4.
plus, sorry, minus is equals to 11 by 30, where x not equal to minus 4 and 7. Now we have to find its roots. Method is not given. So first we have to change it into standard form of a quadratic equation. So here, no need to use any trick. Directly take LCM. X plus 4 into x minus 7 will be equals to 11 by 30. This will be cancelled. We get x minus 7 minus x minus 7 will be cancelled. So we get x plus 4. This implies that x minus 7 minus x minus 4 is divided by, इसका multiply कर लो, x square minus 7x plus 4x minus 3x minus 28 is equals to 11 upon 30. This x and x will be cancelled. This implies that minus 11 upon x square minus 3x minus 28 is equals to 11 upon 30. See, this 11 and this 11 will be cancelled. ये दोनों 11 है, न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इधर 1 है, तो ये 1 में मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 30 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी माइनस 30. This implies that x square minus 3x minus 28 plus 30 will be equals to 0. Our equation will become x square minus 3x plus 2 is equals to 0. Now find its roots by any method, either by factorization or by quadratic formula. ये हमने सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई किया, अब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. नाउ इट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्व इट बाय एनी मेथड. आई हैव एक्सप्लेन्ड 3 मेथड्स: factorization method, completing square method, or by quadratic formula. You may use any out of 3. So do yourself, खुद से ये करना. Note it down. Sir, Yes. sir, can I ask one question? Yes. Why not? बोलो. Sir, A upon बोलो. A upon x minus b plus b upon A x upon- minus a is equal to 2. फिर से X बोलो. upon A upon x A minus upon- b, x ये तो minus है b. 69. क्वेश्चन नंबर 69 ऑफ RS अग्रवाल. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था मैंने. इसमें भी एक ट्रिक लगाना था. सर, इसमें ये वाला ट्रिक नहीं काम करेगा जो अभी आप बताएं. उसमें थोड़ा चेंज ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 69 है, वहाँ 2 है ना, वहां भी वही करना है. 2 को +1 कर देना है. A अपॉन x माइनस बी प्लस b अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ क्या ट्रिक करना है, a अपॉन x माइनस बी है,
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कर लेना है। एक 1 इसमें माइनस करो, एक 1 इसमें माइनस करो। ए अपॉन एक्स माइनस बी माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ टेक एलसीएम हियर, तो ये क्या होगा, x माइनस बी होगा तो a माइनस एक्स प्लस बी एंड प्लस यहाँ एलसीएम x माइनस ए हुआ तो इट विल बी b माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। नाउ सी, ये न्यूमरेटर फिर से बराबर आ गए, इनको कॉमन ले लेना है वैसे ही, लाइक क्वेश्चन नंबर 70। अभी जैसे Yes. क्वेश्चन नंबर 70 हुआ, लाइक दैट टेक कॉमन हियर एंड सॉल्व, 2 आ जाएगा रूट्स। अब ये Thank भी you, देखो, sir. इसमें भी ट्रिक है। अगर ये ट्रिक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इसका तुम एलसीएम लो तो ये क्या होगा, लंबा जाएगा, फिर सॉल्व होने में प्रॉब्लम होगा। सर सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। चलो ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? वेरी लेस टाइम इज देयर, 2 मिनट 3 मिनट और बच गया है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.3 के, ये सॉल्व करने हैं। ओके सर एक क्वेश्चन है, बोलो। x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 माइनस x प्लस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 माइनस, आगे यस सर, इक्वल टू 48 अपॉन 7। 48 अपॉन 7। देखो ये एक दूसरे के इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, तो लेट इट ए, लेट x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए। तो ये a होगा तो ये 1 अपॉन ए हो जाएगा। जहां पे इस तरह के मैचिंग होंगे वहां कुछ उसको मान लो। तो ये गायब हो गया। अब इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो यू गेट ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 48 बाई 7। तो हियर यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सॉल्व करो, ए के 2 वैल्यूज आएंगे यहाँ। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 7a स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 48a। तो हियर वी गेट 7a स्क्वायर माइनस 48a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज इट। इसके 2 वैल्यू आएंगे a के, उस a के दोनों वैल्यू में ये x बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 बैठा लेना तो आ जाएगा। सर उस तरह भी हो सकता है ना, एलसीएम लेके पागल हो एलसीएम जाओगे, लेके होगा लंबा जाएगा ना, सर पागल हो बहुत जाओगे। लंबा हो रहा है, हो जाएगा। गलत हो जाएगा। बंधु मैं बता रहा हूं, तुम मुझसे पढ़ोगे कि मुझे पढ़ाओगे? कहाँ गए मिस्टर पहली फुर्सत में निकल गया। रौनक? कहाँ गया भाई? तुमको यहाँ हाँ आसान सर तरीका बोलिए। सिखाया जा रहा है, तो तुम वैसे हो जाएगा तो करो। तुमको लंबा चलने की आदत बन रही है तो बनाओ। इसका ये फंडा है, इट इज द ट्रिक। जब इसको इस्तेमाल करोगे तो योर क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन मिनट्स, और वैसे करोगे तो घंटों में जाएगा। ओके, वेरी लेस टाइम इज देयर। अब लग रहा है हम लोगों का कनेक्शन खत्म होगा। बाय बाय फॉर टुडे। सॉल्व क्वेश्चंस of NCERT and from other books. बाय सर, प्लीज। गुड नाइट। क्या है बोलो? थैंक यू तो साइड हटी। बाय। चलिए सर चलते हैं अब। हो गया। ओके